नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। पश्चिम बंग रे तृतीय पर्याय पई चलिछि वोटिंग। बूथ आगरे देखिबा मिलिछि लोकमानकर लंबा लाइन उत्साहर सहित भोट देउछन्ति भोटर। दिन 11:30 सुधा 34.71% भोटिंग होइछि। सबु बूथ रे सुरक्षा व्यवस्था को पूरा पूरी कड़ाकड़ी करा जाइछि। पश्चिम बंगर 31 विधानसभा आसन पई हेउछि वोटिंग। हावड़ा हुगली एवं दक्षिण 24 प्रगणा रे एही निर्वाचन मंडली गुड़िक पड़ुवा बेले दौड़े अछन्ति 205 जन प्रार्थी। उभय बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस 31 जाक आसन में प्रार्थी देछन्ति। गत विधानसभा निर्वाचन में समस्त 31 आसन में तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी विजयी होइथिले। एथर टीएमसी को कड़ा टक्कर देउछि बीजेपी। Tarokeshwar, and let me quickly ask some of the voters who are standing in the queue. Dada, কিরকম হচ্ছে ভোট প্রসেস? ভোট কেমন চলছে? ভোট খুব শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, এখানে কোনো অসুবিধা নেই। শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, অসুবিধা নেই। শান্তিপূর্ণ হচ্ছে, কোনো এখানে ইভিএম মেশিন ঠিকঠাক কাজ করছে, লাইন এগোচ্ছে, কোথাও কোনো আটকায়নি? না, কোনো প্রবলেম নেই। কোনো প্রবলেম নেই। So that's what the voters here are telling us. There's no problem in this particular polling station, but I'll try and show you. There are actually two polling stations over here, one on the right and one on the left, and I believe BJP candidate Swapan Dasgupta has gone somewhere inside to take a stock of the situation here on the ground. You can see there is adequate measures being taken. You can see Swapan Dasgupta right in the background. He's moving around and taking a stock of the situation. You can see the ASHA workers, and you can see Swapan da ekhane shobai bolchen vote ঠিকঠাক হচ্ছে, কিন্তু some people are telling us that there have been some disturbances last night. Have you heard anything about it? What have you heard? One of our workers was threatened. Okay. His mother was assaulted. Otherwise, what has been your experience so far since morning? See, the by and large, the people are sort of very peaceful. There have been targeted assault on BJP workers by the TNC. And this has happened previous night. This has happened. That's an intimidation tactic. That's an intimidation tactics. The main objective is to prevent our agents from being in the booths. And your voters from turning up? That also goes without saying, because we are calculating. For us, the more important thing is a high turnout. For the opponents, it seems that a low targeted turnout is the more. But if you see the booth condition right in your background, you should be happy. I mean, No, I'm happy. I'm just here to just see our people are working on the ground to instill confidence in people. And your booth agents, they're there. Right. Shopunda, So that's Swapan Dasgupta confirming that there have been some intimidation that has happened in this very place. Voters, however, say that the voting process is going on in a peaceful manner, but there have been some allegations from the local people over here. सेबडे भोट ग्रहण बेले किछि बूथ रे टीएमसी कर्मी बूथ रे लोकन को वोटिंग करिपा को देउनाहांती। बूथ रे प्रवेश करिपा को बारण करूछंती। लोकन को डराई धमकाई फेराई देउथबार अभियोग करिछि बीजेपी। सेपरि हुकुली रे बीजेपी कर्मी एवं तांकर मां को आक्रमण करिछंती टीएमसी कर्मी। उभयं को माड़ मारी आहत करिबा सहित सेमानक दुकान को मध्य व्यापक भंगारुजा करिछंती। That's one of the BJP workers, alleging that he was beaten up by the local Trinamool Congress. That's his allegation, of course. His mother was also assaulted. Earlobes, were cut by the Trinamool Congress assailants, allegedly. আপনারা কি কমিশনে কোন রকম জানাবেন? আমি অন্য ফোন করেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা টোটাল এখানে লোকজন ঢুকেছিলাম, আমাদের বিজেপি কর্মীরা, কিন্তু ধনেখালি থানার এখানে প্রশাসন কোনো সহায়তা করেনি। ওনার মাকে হসপিটালটা যেটা করব সেটা বন্ধ করতে পারেনি, ভয়ে যেতে পারা যায়। So they are saying that on account of the non-cooperation from the local administration and the police, the workers have not been able to take the victims even to hospitals. They have not been able
to admit them to hospitals, as a result of which there is an underlying tension in this area at this point in time. Shopon Dasgupta, the BJP candidate, corroborates and you can see him, speaking to the local BJP leaders and workers over here, taking a stock of the situation. He is happy overall, but this intimidation tactic is something that Dasgupta says may just affect the voter turnout, and that would not be good for the BJP. With video journalist Angshuman Roy in Tarokeshwar, Hubli, this is Shogoto Mukhopadhyay. तृतीय पर्याय तथा देश पर्यायर आसाम 40 आसन में मतदान दिन 11:30 सुधा हो 33.18% मतदान नहीं भोटर मध्य प्रबल आग्रह देखा मिली। संवेदनशील बुथ में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी 40 आसन 12 जिले में पड़ुछि। तृतीय पर्यायर दौड़ में 25 महिला समेत 337 जन प्रार्थी अच्छा। कांग्रेस समेत 10टी पार्टी एठी महामेंट करी बीजेपी विरोध में निर्वाचन लड़ुछन्ति। शेष पर्यायर जालुकपारी, पटचक्रुची, धर्मपुर, बंगाईगाँ, कोकराझर पूर्व और सिडली आसन उपर समस्त नजर रही। जाकुलबारी लड़ुंट बीजेपी हेवीवेट तथा अर्थमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पंचम थर पर से यही आसन लड़ुंट। सेपरी पटचक्रुची बीजेपी राज्य सभापति रंजित कुमार दास, धर्मपुर शिल्पमंत्री चंद्रमोहन पटवारी, बंगाईगाँ अष्टम थर पर लड़ुंट जोगाण मंत्री तथा एजीपी प्रार्थी फणीभूषण चौधरी। सेपरी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट प्रार्थी तथा मंत्री प्रमिला राणी ब्रह्मा कोकराझर पूर्व और चंद्र ब्रह्मा सिडली आसन लड़ुंट। 2016 निर्वाचन में एठी 40 आसन कांग्रेस, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और एआईयूडीएफ मेंट 25 आसन जीति। बीजेपी और आसाम गण परिषद मेंट को 15टी आसन मिलता। ये फेज में 40 सीट है। बीजेपी और हमारा गठबंधन को मेरा उम्मीद है 22 सीटें मिलेंगे। और पहले 2 फेज में पहला चरण में हमको 40 का सीट आना चाहिए, दूसरा चरण में हमको 25 सीट आना चाहिए। लेकिन उधर से दावा किया जा रहा है कि सीए के बाद माहौल बदल गया आसाम का, और वो माहौल नहीं है जो एक सीए के लेके नेशनल मीडिया चर्चा करना चाहते हैं। वो सरसा आसाम का अंदर नहीं है। उधर से ये भी दावा है कि टोपी लुंगी वालों की सरकार बनेगी। संभव प्रयास तो है वो लोग का, लेकिन संभव नहीं होगा। दादा, आपके एस्पिरेशंस का क्या है 2 मई के बाद? क्या देखिए, आसाम में बीजेपी का सरकार बने, देश और स्टेट तरक्की करे, यही सबसे बड़ा इशू है। तमिलनाडुर 16 विधानसभा भोट एकाथर के 234 आसन मतदान होछि। तेबे तमिलनाडु रे मतदान हार टिके मांदा अछि। एपर्यंत 22.13% मतदान होछि। धीरे धीरे बूथ को आसुछन्ति भोटर। 2 पूर्वतन मुख्यमंत्री जयललिता और करुणानिधि वर्तमान में राज्य में होछि प्रथम विधानसभा निर्वाचन। लगातार 2 थर सरकार थिबा एआईएडीएमके तृतीय थर पर क्षमता बचाई रखिबाक चाहुछि। एथर निर्वाचन में अम्मा लिगासी को बचाई रखिबा मुख्यमंत्री पलानीस्वामी एवं उपमुख्यमंत्री पनीर सेल्वम को पई बड़ चैलेंज। एठी एआईएडीएमके पिठी रे बीजेपी एवं डीएमके पिठी रे कांग्रेस लाउ होई निर्वाचन लढुछन्ति। उभय दल 25 लेखाएं आसन में प्रार्थी देइछन्ति। गत निर्वाचन में एआईएडीएमके 136 आसन में जीतिथिबा बेले डीएमके को मिलिथिला 98। तेबे 2019 साधारण निर्वाचन में एमके स्टालिन को नेतृत्वाधीन डीएमके 39 आसन 38 रे विजयी होछि, जहां विधानसभा निर्वाचन में एआईएडीएमके सरकार विरोधी हावार सामना कराइछि। प्रथम थर पर विधानसभा निर्वाचन में भाग्य परीक्षा करुछन्ति तमिल सुपरस्टार कमल हासन। मोट 234 आसन 154 आसन प्रार्थी देछि कमल हासन को एमएनएम। बाकी 80 आसन में एमएनएम रा सहयोगी एआईएसकेएम एवं आईजेके लढुछन्ति। उभय दल 40 जन लेखाएं प्रार्थी देछन्ति। आज चेन्नई में मतदान करिसेंति राज्यपाल। एथि सहित अनेक नेता मंत्री सेलिब्रिटी मध्य मतदान केन्द्र को जाई निजर मताधिकार साब्यस्त करिसेंति। एमानक मध्य रहिसेंति डीएमके नेता एमके स्टालिन, सुपरस्टार रजनीकांत, वरिष्ठ अभिनेता तथा नेता कमल हासन, अभिनेता विजय प्रमुख। The next course of action is just educate the people more about this caste distribution, how disastrous it is for their life and democracy's survival. I think that's the way it is, and it has to change. It's on the people.
We can't in turn ask why are you maintaining poverty so that they will be in a position to take your money. It's a vicious circle, and we are trying to make it virtuous. Have had a fight. We have found people coming and distributing money from DMK. In fact, we have complained to EC, and the cops also had taken few people in their custody. So money has been gone around, and DMK is very famous to distribute money. They are very famous when it comes to fake voters, false voters. So they are very famous for that. So I'm sure they are going to do everything by hook or crook they would want to win. So they are trying every trick in the world. आज केरल भी भोट देउछि 140 आसन विशिष्ट पंचायत विधानसभा पई मतदान साब्यस्त करुछन्ती केरलवासी भोटरक मध्य प्रबल उत्साह देखा मिली बूथ आगे देखा मिली लोक लंबा लाइन मतदान साब्यस्त करने पई सकाळु भोटर भिड़ जमाइछन्ती बूथ आगे वर्तमान सुधा एठारे 31.32% भोटिंग होइछि एठी एलडीएफ एवं यूडीएफ मध्य कड़ा टक्कर हेउतबा बेले 88 वर्षीय मेट्रो मैन पद्मश्री ई श्रीधरन को इमेज को भरोसा करिछि बीजेपी। सेपटे पुडुचेरी 30 विधानसभा आसन पर भोटिंग होउछि दिन 11:30 सुधा एठारे 35.75% मतदान होइछि एठी निर्वाचन मासक आगरु कांग्रेस नेतृत्वाधीन सरकार भांगी जाइथिला एठी कांग्रेस डीएमके सीपीआई एवं भिसीके मेंट करी बीजेपी विरोध रे लढुछन्ती कांग्रेस 15 डीएमके 13 सीपीआई एवं भिसीके गोटिए लेखाय आसन रे प्रार्थी दैछन्ती। जस्टिस रमन्ना परवर्ती सीजेआई नियुक्त जस्टिस एनभी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट परवर्ती मुख्य विचारपति नियुक्त जस्टिस रमन्ना को 48तम सीजेआई भाव में नियुक्ति देले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एप्रिल 24 रु दायित्व ग्रहण करेंगे जस्टिस एनभी रमन्ना एप्रिल 23 रे अवसर नेबे वर्तमान सीजेआई जस्टिस बोबड़े वर्तमान सभार जो बड़ खबर जस्टिस रमन्ना परवर्ती सीजेआई नियुक्त जस्टिस एनभी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट परवर्ती मुख्य विचारपति नियुक्त जस्टिस रमन्ना को 48तम सीजेआई भाव में नियुक्ति देछन्ती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एबे एक कृषक परिवार जन्मग्रहण करथिले जस्टिस रमन्ना आंध्र और दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य विचारपति रहितबा बेले रमन्ना राज्यर द्वितीय व्यक्ति भाव में एही सम्मानजनक पदवी में बसबाक जाउछन्ती विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में देखिबा कि राय दैथिबा रमन्ना सीजेआई एसए बोबड़ेଙ୍କ ठारू एही दायित्व ग्रहण करिवे। 1957 मसीहा 27 अगस्ट आंध्र प्रदेश एक कृषक परिवार जन्मग्रहण करथिले जस्टिस रमन्ना तेबे जस्टिस एनभी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट परवर्ती मुख्य विचारपति। आगो रचनी गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु वर्तमान समय होछि छोट ब्रेक नै जिबा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक पर स्वागत। सुंदरगढ़ में बढ़ुची संक्रमण रोकवा तीनोटी स्थान में कंटेनमेंट जोन घोषणा कला जिला प्रशासन। बंडेका लुडुकीडीही एवं मुर्किया मिनी कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जायछि। संक्रमण रोकवा कंटेनमेंट जोन घोषणा करिछि जिला प्रशासन। सप्ताह भितर मुर्कियारू 24 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतबा बेले बनडेकारु 25 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। सुंदरगढ़ में देखा कि पॉजिटिव संख्या बढ़ुची, संक्रमण बढ़ुची। संक्रमण रोकवा तीनोटी स्थान में कंटेनमेंट जोन घोषणा करिछि जिला प्रशासन। बनडेका लुलुकीडीही एवं मुर्किया मिनी कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जायछि। संक्रमण रोकवा कंटेनमेंट जोन घोषणा करिछि जिला प्रशासन। सप्ताह भितर मुर्कियारू 24 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतबा बेले बनडेकारु 25 आक्रांत बाहरी। ए संपर्क में अधिक सूचना वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि सुजित शाह। सुजित, जेभଳି भाव सुंदरगढ़ में संक्रमण बढ़ुची, प्रशासन पक्षर कौन सब पदक्षेप निया जाउची, कहीं तीनोटी स्थान में कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जायछि? आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी। गत सप्ताह भितर जदि कहबा बालीसंकरा ब्लॉक रोकिया रे सप्ताह भितर 24 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती और बंडेगा 32 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। जो सप्ताह मध्य दुईटी जगार जेहेतु अधिक संक्रमण चिन्हट होती जिला प्रशासन तरफ दुईटी तीन जगह को कंटेनमेंट जोन हिसाब से घोषणा। तो निश्चित भाव में तीनोटी स्थान पर कटकणा जारी कर कहूँ कि जो भाव में सुंदरगढ़ में संक्रमण बढ़ुची, संक्रमण रोकवा तीनोटी स्थान में कंटेनमेंट जोन घोषणा करिछि जिला प्रशासन। कहीं सुंदरगढ़ जो देखा कि संक्रमितों संख्या बढ़ुची, लुलुकीडीही बनडेगार किसी अंचल में संक्रमण बढ़ुची जहां प्रशासन चिंताजनक होछि। कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जायछि। तेबे केवल स्वास्थ्यकर्मी, अनुमतिप्राप्त अधिकारी और सेवा जोगाणकारी को अनुमति रही। पुरी रे बढ़िला कोरोना कटकणा। पुरी को आसुवा 5टी राज्यर पर्यटकों कोविड टेस्ट हेबा बाध्यतामूलक। 5टी राज्य होची छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र। 72 घंटा पूर्व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट थिले पुरी रे कोनोसी होटेल रे ए 5टी राज्यर पर्यटकों को रहिबाको अनुमति मिलिबो। नहेले जदि 2 डोज टीका नै सारिथिले तबे होटेल रे रहि परिबे। जिला प्रशासन सहित पुरी रो होटेल मालिक मानक आलोचना परे एही निष्पत्ति निया जायछि। कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र किंबा टीका ए सब प्रमाणपत्र नथिले बाहर राज्यर पर्यटकों को 7 दिन होम आइसोलेशन रहिबाको निर्देश दिया जायछि। जो होटेल गुड़िक ए सब कटकणा भांगिबे सेमानक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा कहछन्ति। इस संपर्क अधिक आलोचना करने को प्रतिनिधि अक्षय मिश्रा आम सहित सीधासख जोड़ी होती। अक्षय, पुरी रे संक्रमण रोकवा पर्यटकों कटकणा बर्तमान पुरी को पर्यटकों चिंता जो गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी जानवा चाहिए कि कौन निष्पत्ति नि जाइछि कौन कहते जिलापाल? निश्चित पक्षे जदि कहबा जेहेतु कोविड स्थिति को लेकिन जिला प्रशासन बेस सजग अच्छी। पुरी एक अंतर्जातीय पर्यटन क्षेत्र, तेणु पर्यटकों को किभली भाव में कटकणा कर व्यवस्था कराई। आज रेल स्टेशन में किसी ट्रेन जो पर्यटक मैंने आसते से आर्टिफिशियल टेस्ट करागला और से कहगला कि होटेल रे रिपोर्ट पहुंचवा पर ही से कौन बुलाबुली करेंगे। तो निश्चित पक्षे अंपटे एवं किस समय पूर्व होटेल मान सहित जिला प्रशासन पक्ष बैठक कराई। आम तो होटेल से अच्छा पचार जो बैठक करागला कौन कौन आपण मानक कहगला कौन करेंगे कौन ना कि पर्यटकों को चिन्हट करेंगे कौन तक भी व्यवस्था करेंगे। देखो जेकोसी पर्यटक बर्तमान ये परिस्थिति आम होटेल को आसमें प्रथम टेम्परेचर टेस्ट को नौचु। टेम्परेचर ना सानिटाइज हाथ में करुचु आउ विभिन्न जगह स्थान न छुईवाई आम चेष्टा करने कहूँ। किंतु या भितर बर्तमान जो सरकार जो गाइड 5टी राज्य यथा महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यही 5टी राज्य जो पर्यटक आसवे पुरी आम होटेलर मान को आज प्रशासन तरफ सूचई दि जाकर आइदर कोविड नेगेटिव टेस्ट रखिए रिपोर्ट रखिए और से मैंने 2टी वैक्सीन नहीं रिपोर्ट रखिए। यह स्वागत योग्य पदक्षेप आम मानबू आम सहयोग करूँ। किंतु देखो होटेल शिल्प ये यात्री जो मैंने आसती तार मैक्सिमम 20% रहती। अन्य माने मठ, मंदिर, लजिंग, धर्मशाला आउ छोट छोट होमस्टे मानक रहती। ताकू मध्य प्रशासन नजर दो बोली आशा आम समस्त प्रचेष्टा आशा करुचु आम पुणी थे
कोविड को जय करवा कोविड को जय करेंगे और आम तो होटेल विक्टोरिया देवाशीष कुमार अच्छा जदि कह गत वर्ष एमती कटकणा होता पर्यटन शिल्प प्रभावित होता पुणी एथर 5टी राज्य कटकणा जारी होती जो पर्यटक आसवे केमी चिन्हट करेंगे केमी जो टेस्टिंग रिपोर्ट देखिए से आप गोटे मेकानिजम रहा दरकार देखो चेक इन बेलू प्रथम कथा है आजिकल 90% लोक बुकिंग करके से होटेल रे डायरेक्ट बुकिंग करूँ कि ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल रे बुकिंग करूँ से बुकिंग बेलू से एड्रेस से दौरान तेणु प्रथम कार्य है बर्तमान आम होटेलियर मैंने से बुकिंग गुड़ा आगामी जो बुकिंग अच्छे से स्क्रूटिनी करूँ यही राज्य जो मैंने आसुँच आगे खबर देवु जे यही नियमटी लागू होती तेणु यही नियम को करी आसपारे आसतु ना सी आसतु ना नियमटा या कराई जदि से पाखे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटा ये अराइवल पूर्व रहा से चेकिंग करेंगे तेणु जी आरटीपीसीआर टेस्ट करके आसो सी आसपार जदि नेगेटिव थी कि जो जार वैक्सीनेशन हो जाइए जोड़े डोज हो जाइए तार सर्टिफिकेट थी सी भी आसपार तेणु यही जोड़े जिनस आम इमिडिएटली जो मानकर आगुआ बुकिंग अच्छी से आम जनईदू या छड़ा जदि वाकिन किए आसला प्राथमिक स्तर में तो एयरपोर्ट आप रेलवे स्टेशन में तार स्क्रूटिनी हो जदि तापर भी किए आसिले आम पाखे जहाँ पाखे सब स्टेट आसिले मागू ये जो जिन जदि नाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जनइबू जो अमुक लोक स्टेट आसी पाखे जिन नहीं क्वारंटाइन रखा कि कौन कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुझे जदि खाली जो पेसेंटर धर बाहर तो सांगे सांगे धर पॉजिटिव कहगला कि सरकार सूचना आसला से बंदोबस्त केम तुरंत करेंगे सरकार जनइबे केमती जीव आइसोलेसन रहा कोविड केयर हॉस्पिटल को जीव शुणु प्रथम है जे आम देख लोक आसला बेलू आम तार सिम्पटम कौन अच्छी आम तार टेम्परेचर नोट करूँ यह भी कहूँ लोक रहा भितर जब कौन सिम्पटम डेभलप कला आमको जनइबे जदि कौन लोकर सिम्पटम डेभलप कला आमको सीडीएम कहीदेती आम पठेबू कोविड टेस्ट करने जदि कोविड टेस्ट नेगेटिव आसला भल कथा जदि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आसला सी क्वारंटाइन रखिए कौन करेंगे तार कंटाक्ट ट्रेसिंग आम जो जो स्टाफ मैंने अच्छा ना गाँ दिज्व तांकर 3-4 दिन पर आप टेस्ट करा 3-4 दिन टेस्ट कला पर पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से कार्यानुष्ठान निया व्यवस्था हो भाई सरकार पक्ष जो आगुआ टेस्ट कर आपण मान पहुँचला बोधे सबकि क्लीयर हो जमी स्टेशन में आज टेस्टिंग प्रक्रिया आरंभ हो सारी मुझे यहाँ स्मूथ हो डेफिनेटली आमको आमर यहाँ दी हाथ न मिसिले कामटा सफल हेनी सरकार तरफ भी से चेष्टा करा दरकार आमर भी दायित्व अच्छी आम सरकार सब नीति गुड़ा पालन कर रखू कहीं जीवन और जीविकार विषय आम जीविका को जब बंचाई रखा चाहूँ ताले सरकार को नियम मानिक यहाँ भी किसी चले आमर टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा एंटायर लॉकडाउन न होकर किसी मात्रा भी चलो शुणुले कि होटेल्स मानकर गोटे अनुरोध रोचे कारण जेहेतु लॉकडाउन सटडाउन हेले संपूर्ण टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुए किंतु यही जो प्रिकसन व्यवस्था नि जाउची होटेलियर्स पक्ष हो स्टेशन हो तो निश्चित भाव या बेस उपाद हो पार और यही 5टी स्टेटर पर्यटक मान जो आसवे यही डॉक्यूमेंट नहीं आसवे तो निश्चित भाव गोटे पटे प्रशासन और होटेल्स समन्वय भितर यह व्यवस्था बेस सुगम हो पार और कोविड संक्रमण पुरी को रक्षा कर निश्चित भाव में कोविड मुकाबला नहीं पुरी में टेस्टिंग आरंभ होती जो मैंने बाहर पर्यटक मैंने आसवे से कटकणा निश्चित भाव में बढ़ी अक्षय धन्यवाद अक्षय आपण तमाम सूचना पाई। दिल्ली में बढ़ुची कोरोना संक्रमण एथिपाई दिल्ली सरकार का निष्पत्ति दिल्ली में आज एप्रिल 30 जाए लागू हेब रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रतिदिन राति 10 रु भोर 5टा जाए लागू हेब कटकणा दिल्ली में 2 दिन धरी कोरोना पॉजिटिव संख्या 3500 उपर रहुतबारु दिल्ली सरकार एभली पदक्षेप ग्रहण करिसेंती तेबे रात्रिकालीन कर्फ्यू अत्यावश्यक सेवा को बाद दिया जायछि। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जाएगा, दिल्ली के लोगों से इस पर बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं और उसके बाद आज जिस तरीके से ये बड़ा फैसला सामने आया कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज से लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। 30 अप्रैल तक की अवधि इसकी तय की गई है जो नाइट कर्फ्यू के लिए अभी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, क्योंकि ये फैसला इसलिए
इसलिए लिया गया क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन केसेस को कम करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए सरकार को ये सख्त फैसला लेना पड़ा है यहाँ पर। और इसके बाद अगर मामले नहीं रुकते हैं या फिर स्थिति इसी तरीके से और ज़्यादा भयावह रहती है तो अब सरकार क्या कुछ सोचेगी, उसके लिए क्या कुछ एक एक्शन प्लान बनाएगी। जाहिर सी बात है कि सरकार इस पर भी काम कर रही होगी क्योंकि लगातार रिव्यू मीटिंग्स की जा रही हैं और पीछे भी जिस तरीके से सचिवों के साथ बैठक हुई और अब प्रधानमंत्री भी जल्द ही एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो ये तमाम स्थिति पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपनी निगरानी बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा था कि हम हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हर एक स्थिति पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। और डीडीएमए को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से आदेश दिए डीडीएमए ने कि तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए, उनका फॉलो करना चाहिए। एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लोगों की शादी फंक्शंस में जो संख्या है वो लिमिट कर दी गई। बाहर से आने वाले, जो अन्य राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ा दी गई। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, तमाम चीज़ें पर सरकार काम कर रही है। और इसके बाद आज जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू का, तो जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि नाइट कर्फ्यू के बाद बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ को यहीं पर रोका जा सकेगा, जो दिल्ली के लोगों के लिए, देश भर के लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान समय होछि आउ गोटे छोट ब्रेक नहीं जिबा। न्यूज हेडलाइंस प्रायोजक पेट सफा